इज इट ट्रू दैट आपकी मिमिक्री की वजह से आपको डोर फिल्म भी दी गई? एक्चुअली नगेश वांटेड अ सीनियर एक्टर तभी फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मेरे को उसने पूछा था कि तू बता तुझे आयशा ताकिया का हस्बैंड बनना है या गुल पनाग का हस्बैंड बनना है. सोच अगर गहरी हो जाए तो इरादे कमजोर हो जाते हैं. तो इट्स बेटर कि आप काम करो, जी. यू नो. एंड आई एम हियर, यू नो. इट्स बीन व्हाट 18 years, touch wood, and I'm still here. Someone like Shah Rukh Khan and Farah Khan together, then you can expect only a lot of fun and a lot of madness. So I remember we were sitting and I said, what should I call you? So he said, he was doing this. He said, Shah Rukh. I said, okay, Shah Rukh. I'll call you Shah Rukh. But first day I was a little nervous. When I produced my first film in Marathi, you know, my Om Shanti Om was my textbook in terms of how I should be promoting the film. शाहरुख क्या करता या वो कैसे सोचता, that is how we thought and we promoted the film. Hi, this is Shreyas Talpade and you're watching me on Bollywood Hangama. When did you realize that भाई मैं फेमस हो गया हूँ, that अब लोग मुझे देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, इकबाल करके बुला रहे हैं? You know, इकबाल के पहले, in fact, when I started doing TV, it was a very interesting thing that happened. So I started doing one television soap called Abhar Maya, and my character started getting popular वहाँ पे थोड़ा थोड़ा, and of course I had no clue about it. तभी मेरे पास बाइक भी नहीं थी, मैं बस से ट्रैवल करता था और मैं शिवाजी पार्क में एक बस स्टॉप पे खड़ा था एंड एक बस आके रुकी और एक बंदा बस में से ना ए निशांत निशांत ऐसे बुला रहा था. सो मेरे को निशांत मेरे कैरेक्टर का नाम था, तो मुझे समझ में नहीं आया. पहले तो मैं इधर उधर देख रहा था, फिर ज़ोर ज़ोर से ए निशांत निशांत. तो मैंने देखा कौन है यार, तो मेरे पास देख के अरे निशांत निशांत ऐसे कर रहा है. देन दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज, ओ ये तो मेरे कैरेक्टर का नाम लेके मुझे ही बुला रहा है. So everybody started looking at me. I said, okay, hi. So that's when I actually realized the power of, you know, television. Yeah. कि आप घर घर में पहुंच जाते हो and घर घर का एक आप सदस्य बन जाते हो उस घर का. And that is what started happening. That is when I, for the first time, and then, you know, I remember Dipti, my wife, she was in college at that point in time, last year. And she had invited me to her college for a festival, जो college festival होते हैं. That is where we met for the first time. So she had invited me there, and and that was my first event as a quote unquote celebrity, you know. So when I went there is when I actually realized what it was, you know. I mean, all those students and girls and everyone were going completely mad and they wanted an autograph, and that is when I just didn't know how to react. You know कि कैसे ये कैसे हैंडल करते हैं और इसको रिएक्ट कैसे करते हैं. तो सामने क्या करना चाहिए आपको, तो नमस्ते करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, आई लव यू टू बोलना चाहिए, क्या एग्जैक्टली करना क्या चाहिए. तो मैं इतना लॉस्ट था ना. Luckily for me there was Dipti, and I still remember she was literally hand holding me and taking me to every classroom कि अभी यहाँ जाना है यहाँ जाना है. She was taking me everywhere. I had no clue what was happening around me. Students were, you know, making a circle trying to protect me because everybody wanted to come and touch me and autograph वगैरह. तो वो सारा करके she took me everywhere. Then she took me back to the principal's cabin and she made me sit in the car and then she dropped me back home. That is where I realized this is the one. यही अपना ख्याल रखेगी दोस्त. So without wasting any time मैंने चौथे दिन उसको प्रपोज कर दिया. ऐसे चलो शादी करते हैं. क्या बात है, अमेजिंग यार. बट इज इट ट्रू दैट आपकी मिमिक्री की वजह से आपको डोर फिल्म भी दी गई? हाँ, मतलब टू अ सर्टेन एक्सटेंट येस, बिकॉज एक्चुअली नगेश वांटेड अ सीनियर एक्टर तभी फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट एंड देन आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. मेरे को उसने पूछा था कि डोर में देख दो लड़कियों की कहानी है, तेरे लिए कोई रोल है नहीं उसमें. तो आई सेड ठीक है. आई सेड बट लड़कियों के, ही सेड बट एक रोल दे सकता हूँ मैं. सो कौन सा? से दोनों लड़कियों के हस्बैंड है, तो तू बता तुझे आयशा ताकिया का हस्बैंड बनना है या गुल पनाग का हस्बैंड बनना है.
तो मैं सोच रहा था मैं किसका हस्बैंड बनूं. And then he one fine day just called and said कि you know what, कि there's this role of Behrupiya which I want you to do it. Earlier I was thinking कोई senior actor हो, but now I think it needs to be a younger fellow. And because I used to do mimicry on इकबाल के sets पे हम लोग बहुत मस्ती करते थे, so that's how we knew कि I do mimicry. And he said but I want you to do your mimicry thing यहाँ पे. तो वो अलग अलग एक्टर्स का वो सब करेंगे because he's a Behrupiya. So I said okay, and that's how we started preparing that for that particular part. And I saw a completely different Nagesh in Door. जो इकबाल के वक्त जो मेरे को इतना पकड़ के रखा था, Door में he gave me complete freedom to the extent where I remember my first sequence. One part of the sequence he told me, you go, you write it, and you come back to me, and we will shoot it on the last day. Okay, you take your time. जहाँ मैं सारे actors का एक के बाद एक करता हूँ. He said you only write the whole thing. And you prepare it and you come to me. So and then of course I improvised a lot indoor. छोटी चीजें बहुत की. And luckily it worked. And what a character, what an amazing character. एक particular scene मुझे याद आता है, which is again not you doing mimicry, but it is so beautifully shot and it's so funny. जब आप बार बार कहते हैं एक महत्वपूर्ण बात करनी थी. Yeah, when he's drunk and my God. he comes and he proposes to Yes. Gul. But how was it shooting in the desert? It was actually very tough for the team and the girls. Because मेरा पार्ट बीच बीच में था, तो you know luckily for me मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई because they were shooting in April. I mean we were shooting in April and it was really very hot, very hot. So I kept wondering कि ये लोग धूप में कैसे शूट कर रहे हैं, because कुछ sequences है जहाँ पे हमने वो मंदिर बनाया था right in the middle of the desert and there is nothing around it, you know. तो वहाँ पे कैसे बैठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, we had no clue. But you know, अब I think शूट करते वक्त एक अलग ही जुनून होता है. बट मैं थोड़ा बिकॉज मेरा कभी कभी अर्ली मॉर्निंग हो जाता था या थोड़ा लेटर पार्ट इन द इवनिंग होता था, तो मैं बच गया था. बट बाकी इन सब की गुलपनाग और आयशा की तो बहुत बैंड बज गई थी. श्रेयस, हम काफ़ी सालों से एक तरीके के एक्टर्स को देखते आ रहे हैं जो अपना जब डेब्यू करते हैं तो वो एक सुपरस्टार फीलिंग आती है, हवाओं में बाल उड़ रहे हैं या फिर घोड़े पर आ रहा है एक्टर, और यू नो दिस समथिंग दैट्स हैपनिंग. बट यू हैड अ वेरी अनकन्वेंशनल स्टार्ट. Do you feel that maybe you wanted it like an actor star? हर कोई जो सोचता है ना मुझे फिल्में करनी है, तो उसका यही सपना रहता है कि मैं भी यू नो ऐसा कुछ हीरो टाइप का करूँगा, एक्शन करूँगा, हीरोइन होगी, गाने वाने होंगे. And there are no two ways about it. But I think what helped me select a film like Iqbal was the fact that I used to do theatre. And theatre का आपका एक मोल्डिंग जो रहता है ना, वो आप थोड़ा परफॉर्मेंस की तरफ ज़्यादा झुकाव होने लगता है. तो व्हेन आई वाज ऑफर्ड इकबाल, जब मैंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई कंप्लीटली फेल इन लव विद इट, यू नो. आई सेड वाओ. तो आई टोल्ड अ कपल ऑफ माय फ्रेंड्स एंड दे सेड कि इसमें ना तो हीरोइन है ना गाने हैं, तेरे को डायलॉग भी नहीं बोलने, तू मतलब बोल नहीं सकता, सुन नहीं सकता, ऐसा कैरेक्टर है, और बॉलिंग कर रहा है, गांव का लड़का है, पता नहीं कैसे कपड़े होंगे, ऐसा थोड़ी डेब्यू होता है, पिक्चर मिलेगी. तो आई सेड यार तुम लोग को लगता है मेरे को देखते हुए. सुभाष जी ने तो जब मेरे फोटो उनको भेजे, बिकॉज नगेश नो मेकअप नथिंग, ऐसा ही आने का, सुबह आने का, कपड़े चेंज करने के और शूटिंग शुरू करने का, तो मेरे वैसे फोटो सुभाष जी को भेजे थे, बाल छोटे काटे हुए, आड़े टेढ़े, कुछ नहीं. तो वो फोटो देख के सुभाष जी ने बोला कि ये लड़के को होर्डिंग पे कहाँ डालूंगा. इसको पोस्टर पे दिखा दिया तो जो आने वाले हैं वो भी नहीं आएंगे. तो इफ यू रिमेम्बर मेरे 2 होर्डिंग्स निकले थे. द फर्स्ट वन वाज लाइक दिस, ओके, जहाँ चेहरा नहीं दिख रहा, एंड द सेकंड वन वाज लाइक दिस, ऐसे ऐसे बॉलिंग पोज थी जहाँ चेहरा नहीं दिख रहा. तो वो 2 पहले पोस्टर निकले थे. सो दे सेड तू ऐसा दिखेगा, ये सब होगा. ऐसे मुझे, आपको लगता है कि कोई मुझे बोलेगा कि तुझे मैं हीरो बनाता हूँ और तुझे मैं यू नो हीरोइन विनोइन गाने वाने, कौन करेगा. सो ये अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो ले लेनी चाहिए. इसके आगे क्या होगा, कैसे रोल मिलेंगे, आई हैव नो क्लू. बट आई सेड दिस फिल्म आई फील आई शुड डू. इनफैक्ट व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग इट आई हैड नो क्लू दैट सुभाष जी वाज प्रोड्यूसिंग इट. यू नो, फॉर मी इट वाज Nagesh directing and Nagesh only producing. I got to know about it much later. So I said ये पिक्चर करनी है मुझे. And then I literally stopped communicating with all my friends, okay, and they would ask me कि तो शादी हो गई, शादी के बाद मैं गायब हो गया.
तो किधर है? मैं बाहर हूँ यार। कहाँ है? थोड़ा काम से आया था बाहर। कभी आ रहा है? आऊँगा, बस 1-2 दिन में आ जाऊँगा। तो आई स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग बिकॉज आई सेड आई डोंट वांट दैट नेगेटिविटी, Yeah. आई वांट टू फोकस ऑन दिस पार्ट राइट नाउ दैट आई हैव। इसका क्या होगा, कैसे होगा, मुझे कुछ पता नहीं, बट मुझे करने में मज़ा आ रहा है और ये मैं करूँगा, यू नो। सो दैट्स हाउ आई डिड इट एंड आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी बिकॉज नॉर्मल क्या कहते हैं, डेब्यू तो सारे ही करते हैं ना, नाच गाना बॉडी सिक्स पैक वगैरह, ऐसा कौन करता है? तो याद कौन रहता है? बट ऐसे कहते हैं कि शादी के बाद लड़कों की बोलती बंद होती है, आपके mind में मैं हाँ तो मतलब हो ही सच- गई थी ना मेरी कुछ महीनों के लिए कंप्लीटली बंद हो गई थी। Amazing. इनफैक्ट आई टेल यू, जब फिल्म रिलीज हुई ना तो हम लोग थिएटर विजिट्स कर रहे थे, मैं, नगेश, राहुल, दीप्ति, एलाहे, और जाके लोगों का रिस्पॉन्स देखते थे। हाँ तो पीपल वुड वॉक आउट एंड दे वुड सी नगेश एंड दे वुड से, अरे मिस्टर कुकनूर, हाँ आपकी पिक्चर है, वेरी नाइस फिल्म, वेरी नाइस फिल्म। एंड दे वुड लुक एट मी एंड से, हाँ यही लड़का है ना वो। एंड देन आई वुड से, सर डिड यू लाइक इट? यू कैन स्पीक ये तो बात कर सकता है, बात कर सकता है तो ऐसे नहीं आया, ऑफ कोर्स मैं बात कर सकता हूँ। क्या बात है। नाउ बीइंग एट द पीक ऑफ योर करियर, जहाँ इतनी सारी फिल्म्स आप कर रहे हैं एज अ लीड, एंड देन गेटिंग अ फिल्म व्हिच इज अगेन लार्जर देन लाइफ, ओम शांति ओम, but not playing the lead. Were you apprehensive for this role? Not really. See, I have always followed my gut. You know, I mean, I take my work seriously, but I don't take myself that too seriously. Okay, because I think there's one life. और यहाँ पे आप सोचने में ज़्यादा टाइम बर्बाद कर दोगे तो आप करोगे कब काम? तो मुझे जब वो फिल्म ऑफर हुई तो आई वांटेड टू वर्क विद शाह, आई वांटेड टू वर्क विद फरा, एंड व्हेन शी नरेटेड द फिल्म आई सेड एज अ रोल it's amazing, you know, matlab he's his best friend and then post whatever 20-25 years he comes back and this Yeah. guy has gotten old at that point in time. तो I said कुछ है मज़ेदार, करते हैं, you know, आगे का आगे देखेंगे। तो मैंने ना मतलब खामखा ज़्यादा सोच में नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि एक डायलॉग था कि सोच अगर गहरी हो जाए तो इरादे कमज़ोर हो जाते हैं। तो इट्स बेटर कि आप काम करो, जी। you know, and I'm here, you know, it's been what, 18 years, touch wood, and I'm still here. And we've seen many who came and went, you know, Yeah. because they just kept thinking, you know, because I think कभी-कभी वो रहता है ना, you're in some different world कि I'm a film star, I'm a hero, मैं सिर्फ यही करूँगा। किसने कहा कि मैं सिर्फ किसने कहा तुझे भाई कि तू खाली यही करने के लिए बना है? ये तू खुद सोच रहा है। Correct. You know, you break that mold and you do whatever you have to. Simple as that. I love the way you think, Shreyas. It's just amazing. There's so much to learn from, you know, the way you're taking. जैसे आपने पहले भी कहा कि मतलब आपने ये कह दिया था अपने दोस्तों को कि that I feel that I would rather do a role that is more, you know, real, Challenging. and Yeah, who challenging. gets to do a role in a film, in probably his first film, where he's not able to speak Yeah. or hear? He's a bowler, and I have to learn all of that. And his friends are who? The Buffaloes. Yeah. उनके साथ वो डील कर रहा है, साइन लैंग्वेज बहन के साथ कर रहा है, एंड इतनी सारी चीज़ें करने मिल रही है, एंड ऑब्वियसली इट्स अ चैलेंजिंग पार्ट फॉर एन एक्टर, यू नो। तो वो अगर करने मिल रहा है तो वो छोड़ छाड़ के मैं ये सोचूं कि नहीं यार, मुझे थोड़े बाल बनाने हैं ठीक से, ब्लो ड्राई करके बाल उड़ेंगे, हीरोइन शिफॉन साड़ी में आएगी, कोई नहीं करने वाला बेटा। Correct. वो सब कर रहे हैं ना लोग, तो आप कुछ और तो करो, सिंपल। How was it on the sets of Om Shanti Om? कैसा था आपके लिए Oh, experience? madness, complete madness. You know, when you have someone like Shah Rukh Khan and Farah Khan together, then you can expect only a lot of fun and a lot of madness. So, again, Shah Rukh is one of those जो जब रेडी होके सेट पे आता है तो सेट पे ही रहता है। फिर लंच के लिए सब एक साथ उसके वैन में या उसके मेकअप रूम में जाएंगे, सब एक साथ लंच करेंगे और सब लोग फिर वापस बाहर ही आएंगे, बाहर आके सेट पे बैठे रहेंगे। And obviously we kept improvising. So I was first day a little nervous. I remember, you know, going and meeting him at his place before the shoot. So Farah said, Shah Rukh is going to be practicing for KBC. तो तू 8 बजे आ जा। तो मैं ट्रैफिक में थोड़ा फंसता हुआ मैं कुछ 8:20 तक पहुंचा, and he was still, you know, rehearsing for KBC. I went, I sat, and he was busy, and then he came out at around 8:35 वगैरह। जाते ही फरा ने बोला, लेट क्यों आ गया, तेरे को 8 बजे बोला था, तू ऐसे सॉरी यार फरा, ट्रैफिक में अटका। चल ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। शाहरुख वॉक्स आउट, शाहरुख सेज, सॉरी यार, सॉरी मेरे को लेट हो गया। ऐसे कोई बात नहीं
So that is where we started You bonding. attract these incidences, I feel. Really. है ना ऐसे टाइप के ना. So but then you know that I remember we were sitting and I said what should I call you? So he said, so he was doing this. He said Shahrukh. So I said Shahrukh. So he said yeah Shahrukh. I said नहीं मतलब शाहरुख जी, शाहरुख दादा, शाहरुख भैया, शाहरुख सर. He said no, just Shahrukh. I said okay Shahrukh. I'll call you Shahrukh. But first day I was a little nervous. But it feels like this was used in Om Shanti Om, and Yeah, the yeah, two we of y'all did keep use doing it. that. Yeah, we used Oh, it wow. eventually because that's what I'm saying. You know, first day I was a little nervous for the first couple of hours, and एक बार वो first shot हो गया and Farah said, yeah, fantastic, मजा आ गया. उसके बाद में फिर ना मैंने सोचा यार ये पता नहीं मैं इसके साथ वापस कब काम करूँगा, ओके. और अभी मतलब मैं चुपचाप बैठा रहूँगा तो कोई मतलब ही नहीं. सो आई सेड शाह मेरे दिमाग में ना कुछ इम्प्रोवाइज का चक्कर है, तो यू टेल मी इफ़ यू आर कंफर्टेबल. If not, I will not do it. If okay, then I will say what I have to. So he said, yeah, please, please. So I said कि ऐसा कर सकते हैं क्या, ये कर सकते हैं क्या. उसके बाद में Shah also came up with 10,000 things. हाँ फिर ये भी करते. So all these things were on the spot. Improvise, कि हाँ? ये करते हैं, फिर ओम प्रकाश जी जैसा करते हैं, वो करेंगे, थोड़ा थोड़ा डायलॉग्स में ये चेंज करते हैं, ऐसा करते हैं. To the point where in the evening I remember Farah finally came and we were rehearsing कि अच्छा ये सीन है, हाँ शाह अभी इसमें ये ऐड करेंगे. तो शाह ने बोला हाँ फिर मैं ये बोलता हूँ तो ऐसा रिएक्ट करना. एंड फरा फाइनली केम एंड सेड जितना लिखा है ना चुपचाप उतना उतना करो. तुम लोग करोगे पिक्चर 4 घंटे की बन जाएगी. ओके बहुत हो गया दिन भर का इम्प्रोवाइजेशन. बट फैंटास्टिक. नेक्स्ट डे you know Shah came and said after a long time I really enjoyed working. You know theater actor आता है तो कुछ अलग ही energy रहती है. So we had a great time shooting the entire film right till promoting and releasing that film. You know it was again one of those experiences which you don't easily forget. Because there are so many things that you get to learn. You know? And Shah Rukh is I feel again a very self-made kind of fellow. And because वो खुद बड़ा सोचता है ना, तो राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन वी वर शूटिंग ही सेड पिक्चर कैसे बनेगी मालूम नहीं, बट ये इस साल की सबसे बड़ी पिक्चर होगी, ये मैं गारंटी देता हूँ. यू नो सो एंड दैट्स व्हाट ही डिड. यू नो लंदन में प्रीमियर एंड ही वाज पर्सनली वेरी इन्वॉल्व्ड इन एवरी लिटिल एस्पेक्ट. आई केम वंस फ्रॉम बॉम्बे टू बैंकॉक का शूट करके आया एंड अगेन नगेश कुकनूर नो मेकअप नथिंग. मैं गया तब मैं गोरा था, जब आया तो मैं काला था. ओके तो हम लोग सारे बैठे थे, मैं शाहरुख फराह मुश्ताक मयूर पूरी, और सारा डिस्कशन हो गया. अच्छा ऐसा करना है ऐसा करना है. तो उसने सबको बोला मयूर तू ये करना, मुश्ताक तू ऐसा करना, फराह तू ये करना, हाँ श्रेयस तू तो गोरा होके आ जा. He's so witty, you know. I said, but we had a great time, you know, great time shooting and a lot of things. When I produced my first film in Marathi, you know, my Om Shanti Om was my textbook in terms of how I should be promoting the film with whatever limited resources and budgets that we had. But I went back to that कि शाहरुख ने क्या किया, शाहरुख क्या करता या वो कैसे सोचता. That is how we thought and we promoted the film. Wow. Do you remember a challenging scene from Om Shanti Om that was so difficult for you to shoot? या फिर you know अभी फिलहाल जो याद आ रहा है? Kon Praveen Tambe was right now a little more challenging for me. Om Shanti Om was, of course, I don't remember ऐसा कोई challenging sequence उस वक्त का. I think it's so difficult for actors to act drunk, but the two of y'all managed to do those scenes also so beautifully. It must have been a challenge for y'all. Okay, there are certain things that I cannot really reveal right now, but Okay, we probably have guessed it. yeah, but yeah, the two of us, the something happened and I said, ये करना है, तो he said हाँ तो चलेगा ना. And then we फिर obviously आपने जाकर 2-3 ग्लास छाछ पिए. छाछ पी के आ गए हम लोग. सोलकड़ी छाछ क्या था? सोलकड़ी था. हाँ, सोल को इतना सुकून कड़ी मेहनत से. तो वो क्या, और रात को तो मतलब वो सीक्वेंस हो गया, बड़ा प्यारा सा सीक्वेंस था वो. अभी भी उसके कई सारे रील्स बनते रहते. बट सेम लाइक द अदर डिफरेंस वाज दैट इन डोर आल्सो आई प्लेड वन ड्रंक. बट अगेन मेरे लिए वो रेफरेंस था
what I have seen certain people as a kid, जब मेरे कहीं हम लोग चॉल सिस्टम बहुत होती थी और हमारे कई सारे रिलेटिव्स चॉल में वगैरह रहते थे, तो व्हेन यूज्ड टू गो देयर तो हम लोग देखते थे कोई अंकल ऐसा टल्ली होके आए हैं, तो वो चलते कैसे हैं और फिर वो बच्चों से फिर कैसे बातें कैसे करते हैं. सो दैट वाज माय रेफरेंस फॉर डोर. And for Om Shanti Om again, it was because Farah wanted a slightly larger than life kind of thing. It was a little over the top, but at the same time we tried to keep it realistic. Amazing. अब इतनी बार हम बात कर रहे हैं about your mimicry skills. नहीं यार, मत कराओ यार, seriously. मैं नहीं कर सकता, अभी मैं नहीं कर सकता. मैं actually खुद ही भूल गया हूँ. And in fact, I stopped it in college itself because there was an incident that happened where I used to do so much of mimicry in college कि रिहर्सल में करते करते हमारे गुरु ने मेरे को एक बार बोला कि हाँ एक सीरियस सीन कुछ कर रहे थे, एंड ही सेड हाँ मस्त है चल अभी सीरियसली करना. तो मैंने कहा कि मैं तो सीरियसली कर रहा हूँ. नहीं अभी वो मिमिक्री बंद कर, अभी तो सीरियसली इस पे. आई सेड मैं तो सीरियसली कर रहा हूँ. एंड ही सेड नहीं वैसा लग नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है तू किसी और की आवाज़ में बात कर रहा है. तो आई सेड रियली? आई सेड गिव मी अ ब्रेक ऑफ 5 मिनट. मैं गया एंड आलिम आ रहा था, ओके, जस्ट कॉलेज में. तो मैंने आलिम को हाथ पकड़ा, उसको वॉशरूम में लेके गया और बोला मेरी आवाज़ किसके जैसे लग रही है. तो वो बेचारा he was just walking in, उसको पकड़ के मैं वॉशरूम ले गया. किसके जैसे लग रही है? उसकी आवाज़ कैसी लग रही है? बोला हाँ मेरी आवाज़ किसके जैसी लग रही है? तेरे जैसे लग रही है. ऐसे नहीं कुछ गलत हो रहा है, अंदर गलत हो रहा है. सो दैट्स वेयर आई डिसाइडेड कि मैं मिमिक्री नहीं करूँगा बिकॉज इट स्टार्टेड इंटरफियरिंग विथ माई एक्टिंग थिंग. So I stopped. After that, I did it for Door because he wanted it like that. Yeah. But then again, after that, very conscious effort कि मैं बंद कर दूँगा. Hi, this is Shreyas Talpade and you're watching me on Bollywood Hangama.